Hello everyone, welcome to Nutrition Gyan Prabha platform. In today's class, we will be discussing some of the topics specifically from your resource management portion, right? So, first you have to know that what exactly is the meaning of management. Okay, so management is a process basically of planning, organizing, directing and controlling. So in a easier language, you have to plan. First of all, you have to plan the aspects and then accordingly you have to organize them. Then how exactly you can implement in the reality, right? So for example, if you are a teacher in a school, then you have to, for example, you have decided to provide a lecture on a topic. Then as a teacher, you have to also prepare some of the aspect, like you have to make the notes first and then you have to represent it in front of the student, right? So for that you have to plan the things and you have to organize the note. Now you have to direct the aspect, for example, to the D group staff and all that. If you are playing into like a PowerPoint presentation or PPT methodology, or you can also write it down in the chalkboard method also you can utilize. So in this case, control, like now you have to, when you are representing the notes, as well as it could be even by writing also. So when you are doing that, then also the resources and some of the aspect you have to control, like the student has to be very in a mannerism of in a proper concentration of listening. If the student are very much like chaotic and they are not even listening to you, then it could be a mess. So for that you have to control them. Okay, so the things whatsoever, like the plan and the proper planning and the blueprint, whatever you have decided, for that you have to control the resources also, right, to achieve a specific goal. So this is just an example. So in case of every aspect, it could be any kind of thing, it could be a money management, it could be related to your like a family related issue. So in every case you have to definitely follow this individual method. So I think this is very clear. So now if you consider, if you ask me, then I would say that this is the basic concept, and UGC already have asked in the previous years that what exactly the process. तो आपको ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो पॉइंट्स बोला गया है, ठीक है, इसी को अच्छे से इन सीक्वेंस याद रखना होगा. तो तब अगर वो लोग पूछेंगे तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक प्रॉपर एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करके आप आंसर करो. और ऐसा भी बोला जा सकता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं आएगा, और बेसिकली यू हैव टू omit out or you have to add on, right? So this is the aspect. Next, management play. Yes, so for those who have taking the class of management for the second time, for those definitely आप लोगों का रिविजन हो जाएगा. तो अच्छे से सुन लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से फिर से एक बार अच्छे से अगर समझ लोगे तो अच्छा रहेगा. नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली रिसोर्सेज. सी, जब भी दिस इज नॉट इवन योर फैमिली मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हो सकता है, एनर्जी मैनेजमेंट हो सकता है, स्पेस मैनेजमेंट हो सकता है, एंड ये जो है ना, सब कुछ आपका जो सिलेबस है उसमें बोला गया है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग बुक करेंगे, एंड ये नॉट ओनली सिलेबस, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी लाइक 10 years अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे होगा. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड, तो वो भी हम लोग जानेंगे. ये जो प्रोसेस है अलग सा एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, एंड वो हम देखेंगे, ठीक है. तो अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, कुछ स्पेसिफिक अप्रोच होता है मैनेजमेंट में. द फर्स्ट वन इज योर
क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच अगर आप देखो तो वो बेसिकली फोकस करता है ऑन एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं वो स्पेसिफिकली, एंड देन ये एम्फसाइज करता है साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल में। तो ये अगर मैं बेसिकली इन ओवरऑल ओवरव्यू अगर आप लोगों को मैं देना चाहूँगी तो ये बोलूँगी कि बेसिकली ये एक प्रॉपरली वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो बेसिकली साइंटिफिक मेथडोलॉजी से काम करता है। तो इसमें नेक्स्ट अगर आप देखो बिहेवियरल अप्रोच, तो ये बिहेव से जुड़ा हुआ है एंड दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये इससे रिलेटेड है। तो अगर अप्रोच बोला जाएगा तो उससे रिलेटेड जो जो एस्पेक्ट है अगर वो आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच व्यूज मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ interrelated components where inputs is processed to produce output। तो ये जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये फॉलो करना होता है। तो सिस्टम अप्रोच इज ओनली दैट, बेसिकली दैट ओनली, नथिंग एल्स। कॉन्टिजेंसी अप्रोच, सो ये क्या सजेस्ट करता है, ये बेसिकली जो सजेस्ट करता है वो है देयर इज़ नो सिंगल बेस्ड वे टू मैनेज, इंस्टेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो इधर बोला गया है कि एज अ होल मैनेजमेंट इज बेसिकली सिचुएशन ड्रिवन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो इफ फॉर एग्जाम्पल suddenly there is any kind of unexpected thing you have like anything unexpected crop up, then you have to deal with it, you have to behave, you have to motivate yourself to properly approach that. So you do not have probably any plan before, but you have to deal with it. So management in case of contingency approach बोला गया है कि ऐसा कुछ प्रोटोकॉल ऐसा होता ही नहीं है जिससे आप अच्छे से मतलब पहले से ही सोच के रखो कि प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, देन ऐसा होगा एंड और देन कंट्रोल करोगे, ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं होता कंटिजेंसी अप्रोच में। तो जैसा सिचुएशन होगा अकॉर्डिंग टू दैट आप मैनेज करोगे। सो नाउ मैनेजमेंट ऑफ टाइम, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिस इंडिविजुअल पोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू द इफेक्टिव प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विच इज़ लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल। सी टाइम इज़ लाइक यू कैन नॉट रिन्यू इट, राइट। टाइम अगर एक बार चला गया तो चला गया, तो वो चीज़ तो टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे तब भी उसका कोई वैल्यूएशन आप दे रहे हो, नहीं तो नहीं। सो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओ तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा एंड आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। Tools such as timetable and to-do list are commonly used to manage time. So this is very like for sure it is very common in our daily life. Like not only me, probably you also utilize a proper time schedule to probably to do your work. Like कब आप कौन सा वाला कंप्लीट करोगे, तो ये like आपका जो हो गया anything like any work. For example you are preparing definitely for your UGC NET examination, तो कौन सा चैप्टर आप कब करोगे, कब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, राइट। सो दिस थिंग्स आप तो अकॉर्डिंगली आपके जो टाइम, आपका जो टाइम है आप जब फ्री होगे तब अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रोबेबली डेफिनेटली मैनेज करोगे, राइट। तो ये तो डिफरेंट होगा, मैन टू मैन वेरी करेगा, वही बोला गया है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो आपका जो आएगा तो ये आपका जो मेजर एस्पेक्ट है वो है फंक्शन जो होता है वो है प्लानिंग करो, देन ऑर्गेनाइज करो, देन स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। लाइक प्लानिंग मीन्स सेटिंग द गोल्स,
लाइक डिसाइडिंग उसमें क्या क्या लगेगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये डेफिनेटली इन स्ट्रक्चर बोला गया है। तो फर्स्ट इज़ योर प्लानिंग, नेक्स्ट आपका आएगा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइज करने में जो एस्पेक्ट इम्पोर्टेंस आप जिसको दोगे वो है अरेंज करोगे जो भी रॉ मटेरियल, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट अबाउट कुकिंग। सो अगर कुकिंग भी होता तो डेफिनेटली आप अगर प्लान कर रहे हो कुछ अच्छा बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल बिरयानी आप बनाओगे, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो आप ऑर्गेनाइजिंग में क्या करोगे, इस पार्ट में आप वो डेफिनेटली आपका फोकस ये रहेगा कि आप एक इकट्ठा करो जो भी रॉ मटेरियल इसमें मतलब कुक करने में लगेगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टफिंग। तो स्टफिंग मीन्स सिलेक्टिंग एंड प्लेसिंग द पीपल। सो ये अगर रिसोर्स मैनेजमेंट अगर होगा तो उसमें आप डेफिनेटली ये कंसिडर करोगे कि उसमें ह्यूमन रिसोर्स को बोला जा रहा है। तो ये जो कुकिंग आप करोगे फॉर एग्जांपल, तो देखा जाएगा कि आप 500 लोगों के लिए आप कुक करना चाहते हो, तो एक फॉर एग्जांपल फॉर 1 पीपल दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही अगर बर्तन होगा तो उसमें उतना ज़्यादा पकेगा भी नहीं, तो 5 लोग लगेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर प्लेस लगेगा, ठीक है। डिफरेंट लाइक व्हाट आर द यूटेंसिल्स, वो भी आपको ठीक से रखना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है। सो वो आप करोगे इन केस ऑफ स्टफिंग। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। तो नाउ आप उन लोगों को गाइड करोगे कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डायरेक्शन दे विल बी डूइंग देयर वर्क। तो नाउ कंट्रोल क्या करोगे, अगर कोई भी गलती हो रहा है, अगर आप देख रहे हो कि यस दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, तो वो आप क्या करोगे, वो आप डिस्कार्ड करोगे एंड उसमें आप जाओगे नहीं। मतलब आप प्रॉपर्ली मॉनिटर करोगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई भी गलती हुआ वो आप करेक्ट करोगे। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन कॉल इट एज कंट्रोलिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जो मिलेगा वो है फीडबैक टू प्लानिंग। जो आउटकम आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप फीडबैक आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द थिंग, मैनेजमेंट का काम क्या है। सो टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट। सो एज वी नो दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। लाइक अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज कर पाओ तो आपका जो काम है, जो टास्क है, जो एक्टिविटीज़ है वो आप अच्छे से कर लोगे। ये आपको अलाउ करता है कि आप एक प्रॉपर स्मार्टर वे में आपका जो काम है वो अच्छे से कर पाओ, नॉट अ हार्डर मोड रैदर अ स्मार्टर मोड, ओके, जो आपको लीड करेगा टू अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। सो दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट, तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है। टाइम मैनेजमेंट refers to the effective planning and utilization of time, which is a limited and non-renewable resource. Definitely time is limited and you cannot renew that, right? तो next is it involves setting priorities. अगर आपके पास 10 काम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा काम आप करोगे जो right now is the most necessary to do, right? तो उसी अकॉर्डिंग जो जिसका प्रायोरिटी लाइक प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग आप उसको सीक्वेंस में सजाओगे। देन आप एक प्रॉपर शेड्यूलिंग करोगे टास्क का एंड अवॉइड करोगे वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर वेस्ट हो रहा है ज़्यादा किसी भी काम में, मतलब काम के अलावा और भी चीज़ें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम वो आप अवॉइड करोगे। तो ये 3 चीज़ें देखना पड़ेगा and this is very important. Okay, so proper time management helps in increasing productivity, reducing stress and achieving goal efficiency. तो जो भी आपका गोल है वो आप 100% efficiency अगर आपको चाहिए तो आपको टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली, राइट। तो जो भी फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है वो इम्पोर्टेंट है एंड इन द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो द सेम। अगर आप करोगे अच्छे से काम तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही एंड आपका स्ट्रेस लेवल भी घटेगा। नेक्स्ट, टूल्स सच एज टाइम टेबल्स एंड टू डू लिस्ट आर कॉमनली यूज टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली इन डेली लाइफ, राइट। तो अगर आप प्रॉपर टूल्स आप यूटिलाइज करोगे, लाइक यू हैव मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल,
एंड अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाओ खुद का, तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप चाहे तो वो चाहे मतलब डेफिनेटली आप चाहोगे भी, तो अगर आप हर दिन का जो टू डू लिस्ट है वो अच्छे से देख लो सुबह उठ के एक बार, तो आपको आपके लिए इजी रहेगा कि आपका जो काम है कौन सा काम कब कब करना है। तो फॉर श्योर ओवरऑल आप कर लोगे सभी काम, एंड आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो दैट इज वाई टाइम मैनेजमेंट इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट एंड नेसेसरी। सो नाउ टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है बहुतों बार। तो ये जो टूल है, फर्स्ट इज योर पीक लोड, देन वर्क कर्व एंड रेस्ट पीरियड। तो ये एक कर्व है, अगर आप अच्छे से देखो तो फर्स्ट इज योर, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कर्व। सो पीक लोड अगर ऐसे जाता है, अगर एक ग्राफ हुआ तो अगर हेयर इज अ पीक लोड, एकदम ऊपर पीक लोड में अगर आप जाओ तो पीक लोड होता क्या है, पीक लोड इज, ये जो टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सो पीक लोड इज मैक्सिमम एफर्ट स्टेज। So here the load of work, like the highest load of works you are having, and you have to complete each and every work. So the maximum effort you have to like put, right? So आपको देना ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन से आपको काम करना पड़ेगा। तो जो पीक लोड होगा तो मैक्सिमम एफर्ट वो मांगेगा वो स्टेज, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पीक लोड। देन वर्क कर्व, सो हियर एफिशिएंसी पैटर्न ओवर टाइम। सो अगर वर्क कर्व है तो वर्क फर्स्टली वार्म अप एंड देन पीक लोड एंड देन रेस्ट पीरियड। तो पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा काम करते हो पीक लोड में और भी ज़्यादा, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ग्राफ जब नीचे आएगा तो आपको रेस्ट भी मिलेगा। सो रेस्ट पीरियड इज एसेंशियल टू रिड्यूस द फैटिग। अगर आप एक मतलब विदाउट एनी लाइक रेस्ट यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, देन आपका फैटिग भी होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट नेसेसरी होगा, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि दिस इज लाइक इन केस ऑफ आवर लाइफ ना, काम तो रहेगा ही, लेकिन आपका जो हेल्थ है, आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको सस्टेन करने के लिए रेस्ट भी नीडेड होता है, ठीक है। सो नाउ ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट इन एनर्जी मैनेजमेंट। तो ये जो अगर आपको बोला जाए कि एनर्जी मैनेजमेंट में कौन सा एस्पेक्ट फॉलो होता है, तो दिस इज द थ्री इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। वन इज पीक लोड, देन इज वर्क कर्व, एंड थर्ड इज रेस्ट पीरियड। तो ये भी एक बार क्वेश्चन में आया था, ठीक है। सो जोन देन परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, देन क्रिएटिव काम। यहाँ पे आप पीक परफॉर्मेंस में जब रहोगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा, लेकिन आप इतना इन्वॉल्व हो गए काम में कि आपका एक कामनेस भी होगा, क्योंकि काम हो रहा है, यू आर वेरी मच प्रोडक्टिव, आपका काम अच्छे से हो रहा है। देन आहिस्ता आहिस्ता फैटिक जोन आएगा, आपका हेल्थ खराब होगा, एग्जॉशन आएगा, पैनिक एंड एंजाइटी होगा, एंड ब्रेकआउट एंड बर्नआउट फेज पे आप आ जाओगे। इसीलिए रेस्ट नीडेड होता है, ठीक है। सो वर्क कर्व हेल्प्स इन स्टडिंग चेंजेस। तो अगर आप खुद का भी एक वर्क कर्व बनाओ ना, तो आप देखोगे कि कब, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर 10 days यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, देन अगर आप देखोगे लाइक फ़ोन में भी दिखाता है ना आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो अगर आप देखोगे कि आज मैंने सेकेंड पेपर का 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, कल मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया एंड 2 चैप्टर पढ़ लिया, परसों मैंने क्या किया, मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया एंड 2 चैप्टर न्यू पढ़ लिया एंड 2 चैप्टर पुराने रिवीजन भी मैंने दिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली आपका जो एफर्ट है वो आप दे भी रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, एंड आपका वर्क जो कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली ऊपर जा रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग स्लगिशली विद अ शार्प राइज एज द वर्कर गेट्स इनटू हिज स्ट्राइड, एट द एंड क्या होता है, वार्मिंग पीरियड प्रोडक्शन कंटिन्यूज एट द स्टेडी रेट। तो अगर आप एक ही तरह काम करते रहोगे तो वो आपका एक हैबिट बन जाएगा, एंड डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी एक स्टेडी रेट में आ जाएगा, ठीक है।
रेस्ट पीरियड मैंने बोला है, सो नथिंग न्यू कि रेस्ट पीरियड्स आर एन इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ मैनेजमेंट विच कैन हेल्प to improve performance and achieve better result, right? So that is the aspect कि अगर आप रेस्ट लोगे definitely it is going to help you to improve and आप with time आपको better result for sure मिलेगा. तो rest time allows the body and the mind to recover and grow. It can be especially important after heavy manual labor. अगर आप मैनुअली कुछ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ मतलब मैनुअली कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिस को कुछ मैथमेटिकल कर रहे हो, तो आपको खुद को ही करना पड़ रहा है. लाइक नॉट ओनली रीडिंग, यू आर डूइंग समथिंग, राइट? सो उसके लिए उसी के साथ विथ योर ब्रेन योर फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो इज बेसिकली यूटिलाइज्ड. So rest time allows the body and the mind to recover and grow. It can be especially important after heavy manual labor, but it doesn't necessarily need to be a complete break from our work. है ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट का जो मतलब निकालो वो है कि मैम क्या मैं एक दिन पूरा सो के मतलब लाइक जस्ट for sleeping I can utilize a whole day. So no, I not only here as a theory but definitely nothing is like that. So आपका जो रेस्टिंग पीरियड है वो एक स्पेसिफिक टाइम सेशन होगा, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही काम बंद करके पूरा एक दिन आप ब्रेक ले लो. सो नॉट लाइक दैट, राइट? सो वर्कलोड, सो यार फिजिकल वर्कलोड डेफिनेटली, एंड नॉट ओनली दैट आपका जो फिजिकल स्ट्रेन एज वेल एज आपका जो थिंकिंग होता है, मेंटल वर्कलोड भी होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. फिजिकल के साथ साथ मेंटल वर्कलोड क्या है, वो है कॉग्निटिव लेबर. आपको सोचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा उस काम में, एंड इट इज़ अ कॉग्निटिव एंड इमोशनल एफर्ट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर्स. फॉर लाइक दिस इज रिलेटेड टू योर फैमिली, राइट? So it can include the planning, stressing, anticipating, preparing, organizing that takes place in your head. कि आप सोच रहे हो कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. तो this is all you need for like thinking is needed. Emotional effort is also needed. तो मेंटल लोड अगर बोला जाए टेक्निकली, आपको यूजीसी पूछे कि मेंटल लोड होता क्या है, किससे एसोसिएटेड है, तो मेंटल लोड इज रिलेटेड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, decisions and details you manage throughout the day, like whatsoever detailing you are managing, like for example for a family, for example someone who is trying to buy a new house, like he has to or she has to buy something like any other stuff for the growth of their children, for their family members, like so these are huge decisions. And not only that, this is kind of a thing which can stress you up. So these things are related to your mental labor, and emotional labor and empathy is also required to manage the relationships and familial responsibilities. तो वो तो ज़रूरी है ही. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है जिसके साथ आंसर भी मैंने दे दिया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आया तो आप रिविजन दे के चले जाओगे तो कॉमन आ जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है. तो देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के ऊपर क्वेश्चंस है. लाइक पीक लोड रेफर्स टू मैक्सिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर और मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर, और रेस्टिंग फेज और रिकवरी फेज. तो यस, बी इज द आंसर. सो you have to remember this. In a work curve, the highest efficiency is observed during warm-up phase, decline phase, peak efficiency phase or rest period. Definitely it is peak efficiency phase. Next, the initial stage of the work curve is also known as warm-up phase, peak flow phase, recovery phase or decline. So yes, warm-up phase is the answer. So I think so. Okay. So yes, the C is the answer. Okay. Next.
Rest period is important because it increases the fatigue, definitely not. Reduce efficiency, definitely not. Restore energy and reduce fatigue. So C is the answer. Okay, this is very clear. C is the answer. Peak load generally occurs during your middle of the work, end of the work, beginning of the work. So yes, this is the answer of like middle of the work without any hesitation. क्योंकि मिडिल में जब आपके पास बहुत सारा काम होता है so उसको ही पीक लोड बोला जाता है. नेक्स्ट, द डिक्लाइन फेज इन अ वर्क कर्व इज मेनली ड्यू टू फैटिग, हाई एनर्जी लेवल एंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड. सो नो, जब आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा तब तो आएगा ना डिक्लाइन फेज. तो दैट इज वाई द आंसर इज बी. वर्क कर्व हेल्प्स इन इंक्रीज वर्कलोड, अंडरस्टैंडिंग द एफिशिएंसी पैटर्न, जो मैंने समझा अभी, तो आंसर बी होगा. ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस पीक लोड. पीक लोड को कौन सा जो एस्पेक्ट है वो रिड्यूस करता है? तो यस, इंक्रीजिंग वर्कलोड. वर्क सिंप्लीफिकेशन अगर होगा, यस, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन अगर सिंप्लीफाइड वे में आप काम करोगे तो पीक लोड थोड़ा बहुत डेफिनेटली विथ टाइम रिड्यूस होता जाएगा. रेस्ट पीरियड शुड आइडियली be provided only at the start, during at the peak, after or during decline phase or not required. So no, after or during the decline phase. तो अगर डिक्लाइन हो चुका है तब भी आप थोड़ा रेस्ट लोगे क्योंकि आप तो एग्जॉस्ट हो चुके हो पूरी तरह से ना, और ड्यूरिंग डिक्लाइन फेज भी हो सकता है वो. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ वर्क कर्व इज रिलेटेड टू एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. तो यस, एनर्जी मैनेजमेंट ही है. कंटिन्यूअस वर्क विदाउट रेस्ट लीड्स टू fatigue and reduced productivity, better performance. So no, B is the answer. Which phase follows peak efficiency in a work curve? So is it warm-up phase, rest phase, decline phase and or planning phase? तो बोला गया है कि कब, which phase is basically follows peak efficiency, कि जब आप सबसे ज़्यादा अच्छे से मतलब आपका जो एफिशिएंसी रेट है वो पीक पे रहेगा. तो आपका जो एफिशिएंसी रेट है वो आपका जो इनिशियल अगर प्लानिंग फेज में आप काम नहीं कर रहे हो तो वो नहीं आएगा. डे इज़ नॉट देयर. रेस्ट फेज में भी नहीं होगा, वार्म अप फेज में भी नहीं होगा. ये जो आपका पीक फेज है, सॉरी पीक एफिशिएंसी है, वो मिडल ऑफ द वर्क आएगा. ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन इधर नहीं है. तो डिक्लाइन फेज भी आ सकता है, क्योंकि अगर डिक्लाइन हो रहा है तो फिर से मतलब आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो होने से पहले होना चाहिए. लेकिन सी जो मिडिल वाला ऑप्शन है वो नहीं है, इसीलिए आंसर डिक्लाइन फेज होगा. आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर. तो आज जो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है सिलेबस में, वो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमने कवर कर लिया है. तो फॉर लाइक कवरिंग योर सिलेबस अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, definitely follow regularly the classes, and whenever you are feeling like there is any query, you can also ask through the directly like the number which we have given to the platform, or through the message section also, right? So next we will definitely following each and every section of like the unit of the syllabus. So आप देखते like रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपको हेल्प ही होगा. एंड डेफिनेटली आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन आप लोग हमारे साथ अगर रहोगे तो आपका हो जाएगा. ठीक है. सो डेफिनेटली इफ देयर इज़ एनी क्वेरी आप लोग ज़रूर हम लोग को मैसेज के थ्रू भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. Thank you, and do watch the whole video, okay? And let us know what exactly is there any other query of yours, right? So thank you.